Hello, dear students. Till now, in class 11th, we discussed few lectures about classification, basics of taxonomy, binomial nomenclature, and systems of classification. Today, I will discuss five kingdom classification with you. The debatable position of fungi, bacteria, and viruses led to the replacement of two kingdom grouping by a five kingdom classification. As you know that first Mr. Aristotle tried to classify organisms into two groups. Basically, he made two groups: plants and animals, animalia and planty kingdom. But some group of organisms like fungi, like bacteria, like viruses led to the replacement of two kingdom grouping by a five kingdom classification, and five kingdom classification was proposed in 1969 by R.H. Whittaker. The five kingdoms are Monera, Protista, fungi, plantae and animalia. Okay students, now I will proceed. Robert Whittaker, an American taxonomist, has proposed a five kingdom classification of living organisms on the basis of following features. What are the features? Basic features are prokaryotic and eukaryotic nature of cell, means nature of cell, unicellularity and multicellularity, means number of cell present in the organism, and mode of nutrition, holophytic, may be absorptive, may be ingestive. Source of nutrition means either nutrition or food is made inside of the organism, or animal or plant, or you can say organism live organism, living being is taking its food from outside and digesting it in its cells. Then that is heterotrophic mode of nutrition. Then next basis for this five kingdom classification is ecological lifestyle, like they may be producers, they may be consumers, they may be decomposers, and phylogenetic relationships. Phylogenetic relationships means evolutionary history. What are the evolutionary positions of these group of animals? Okay students, now I will detail you these topics. The five kingdoms of classification are Monera, Protista, fungi, plantae. Plantae are also said to as metaphyta or plants. All plants are grouped into kingdom plantae and also known as metaphyta. All animals that are multicellular actually kept into animalia are metazoa, named as metazoa kingdom, means animalia kingdom also known as metazoa, and plantae kingdom also known as metaphyta, and other three are Monera, Protista and fungi. Okay students, now I will proceed on next slide. This is five kingdom classification basic plan. Now I will detail you the basic characteristic features on which that are the foundation stones for grouping the animals in different kingdoms like Monera, Protista, fungi, plantae and animalia. First one is cell type. Cell type. There are two types of cells, prokaryotic and eukaryotic cells. Prokaryotic cells are the cells in which primitive nuclear organization exists. Primitive nuclear organization means nuclear chromosome, nuclear material or chromosome
remain suspended in cytoplasm and a definite boundary around chromatin material, genetic material is or chromosome is absent. Then that is prokaryote. And single kingdom includes all the prokaryotes on earth in सिंगल किंगडम, दैट इज मोनेरा। सिर्फ और सिर्फ मोनेरा ही एक वो किंगडम है अर्थ पर जिसमें कि सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं, और बाकी आप देख लीजिए कि जितने भी बचे हुए यहाँ पर यूकैरियोटिक वाले ही हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, इन सभी में यूकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है, और जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं प्रोकैरियोटिक, वो सब के सब सिर्फ मोनेरा में रखे गए हैं। नेक्स्ट इज सेल वॉल। तो सेल वॉल, पहली बात तो सेल वॉल प्रेजेंट है कि नहीं है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हियर इज प्रेजेंस और absence ऑफ सेल वॉल, एंड देन इफ सेल वॉल इज प्रेजेंट, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ सेल वॉल, ये किसकी बनी हुई है ये भी देखते हैं। तो चलिए इस डिस्कशन को हम लोग प्रोसीड करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मोनेरा है, मोनेरा किंगडम है, एक्चुअली ये क्या थे, नॉन सेलुलर थे। सेल वॉल में आप इनको नॉन सेलुलर कह रहा है, लेकिन इनके जो सेल है, क्योंकि ये जनरली यूनिसेलुलर्स होते थे, एक ही सेल पूरा एनिमल है, पूरा ऑर्गेनिज्म है, तो नॉन सेलुलर टर्म यूज़ कर रहा है। बट इनमें सेल वॉल होती थी और वो पॉलीसैकेराइड और एमिनो एसिड की बनी होती थी। जबकि आप जानते हैं कि जो नॉर्मली अगर सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो वो सेलुलोज या काइटिन की बनी होती है। यहाँ पर अगर मोनेरल्स में अगर सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो वो पॉलीसैकेराइड और एमिनो एसिड की बनी होती है। और प्रोटिस्टा की भी बात करें तो प्रोटिस्टा में भी कुछ मेंबर्स हैं जिनमें सेल वॉल होती है और कुछ मेंबर्स हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती है। यानी कि जिनमें प्रेजेंट है तो वो सेलुलोज की बनी रहेगी, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो कोई बात नहीं। यानी कि प्रोटिस्टा में जो है कंट्रोवर्शियल कंडीशन है, ऐसे एनिमल्स भी आते हैं जिसमें सेल वॉल होती है, और कुछ ऐसे एनिमल्स भी प्रोटिस्टा में रखे गए हैं जिनमें कि सेल वॉल नहीं होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी यहाँ आप देख रहे हैं प्रोटिस्टा का कंट्रोवर्शियल है कि ऑटोट्रॉप्स भी इसमें आते हैं, और सम मेंबर्स आर हेटेरोट्रॉप्स। जो ऑटोट्रॉप्स होंगे यानी प्लांट लाइक होंगे, यानी खुद अपना फूड अपने सेल के अंदर बनाएंगे, तो उनमें सेल वॉल होती है। और जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं जो कहीं और बना हुआ फूड एब्जॉर्ब करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, फिर उसे अपनी सेल के अंदर डाइजेस्ट करते हैं और तब न्यूट्रिशन उन्हें मिलता है, जिन्हें कि हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। मोस्टली उनमें ऐसे प्रोटिस्टेंट्स में क्या होता है कि सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से मोनेरा में भी आप देख सकते हैं, मोनेरा में भी अगर हम बात करें सेल वॉल की और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कंडीशन की, तो यहाँ पे भी सभी मोनेरन्स में सेल वॉल प्रेजेंट हो ये ज़रूरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द में प्रेजेंट होती है, और ये भी ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो सकता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मोनेरा और प्रोटिस्टा में जो क्लासिफिकेशन किया गया, ग्रुपिंग की गई एनिमल्स की, एनिमल लाइक की या प्लांट्स की या प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स की, तो उनको रखा तो गया एक अलग से प्रोटिस्टा और मोनेरा किंगडम बना करके, लेकिन उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि मोनेरा में भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं जिनमें सेल वॉल में भी प्रेजेंट, में नॉट भी प्रेजेंट। प्रोटिस्टा में भी ऐसा ही है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी ऐसा ही है। बट आपको ये बेसिस जो है मेनली यहाँ पर जो मोनेरा और प्रोटिस्टा का है किंगडम का, मोनेरा और प्रोटिस्टा किंगडम का, वो मेन बेसिस क्या है बेटा, वो मेन बेसिस है कि यहाँ पर सारे प्रोकैरियोट है, यहाँ सारे यूकैरियोट हैं, लेकिन ये यूकैरियोट जो प्रोटिस्टा में है ये सारे यूनिसेलुलर है, और बाकी जो यूकैरियोट्स आपको यहाँ दिखते हैं फंजाई, ये मल्टीसेलुलर है, ये भी मल्टीसेलुलर है, ये भी मल्टीसेलुलर है, ये यूकैरियोटिक है, और ये क्या है, यूनिसेलुलर्स है। तो इसी मामले में मोनेरा जो है वो सबसे अलग हुआ क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर को कंटेन करता है। प्रोटिस्टा भी सबसे अलग हुआ क्योंकि यहाँ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। फंजाई की खास बात ये कि ये यूकैरियोटिक है और मल्टीसेलुलर है, लेकिन इसका सबसे अलग जो है वो क्या है कि जो फंजाई है उसमें
हेट्रोट्रॉप्स हैं सारे ही, सभी जो है वो कोई ऐसे नहीं है जो अपने सेल के अंदर अपना फूड प्रिपेयर करते हो, वो सभी जो है हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी मल्टी सेलुलर है एक बात, यूकैरियोटिक हैं और हेट्रोट्रॉप्स हैं। ऐसा एनिमल में भी होता है, लेकिन एनिमल कैसे कैसे करते हैं, मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, बट ये क्या करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, यानी कि ये फूड को पहले इंजेस्ट करते हैं, यानी खाना खाते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, फंजाई जो होते हैं एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले होते हैं, यानी कि ये फूड को अब्जॉर्ब करते हैं, इंजेस्ट करने की जगह अब्जॉर्ब करते हैं। और ये फंजाई के साथ एक बहुत बड़ी बात ये भी होती है कि ये डेड डिकेइंग फूड मटेरियल को भी यूज़ करते हैं। फंजाई कैन यूज़ डेड डिकेइंग मटेरियल एज अ फूड, बट आप एनिमेलिया में कभी ऐसा नहीं देखेंगे कि डेड डिकेइंग मटेरियल को एनिमेलिया जो है वो अपने फूड की तरह यूज़ करे। ठीक है, फिर इस तरह से प्लांटी को आप देखेंगे तो हम लोग वन बाय वन देख रहे, तो हमने मोनेरा के बारे में मैंने आपको बताया कि ये क्या है, यूनिसेलुलर्स हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, और इनमें सेल वॉल प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी। अगर सेल वॉल प्रेजेंट, इफ सेल वॉल प्रेजेंट इन मोनेरेंस देन दैट विल बी मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल बी ऑलवेज अब्सेंट इन मोनेरा। और ये आप देख रहे हैं बाकी सारे जो यूकैरियोट है तो उन सभी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि a well definite boundary around chromosome around genetic material is present। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इसी तरीके से अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि जो मोनेरा है उसमें भी सारे यूनिसेलुलर्स हैं और प्रोटिस्टा है इसमें भी सारे यूनिसेलुलर्स हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो ये दोनों सेलुलर लेवल के हुए, और बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो जैसे फंजाई है तो यहाँ मल्टी सेलुलर तो है बट यहाँ टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होता। इसी तरह प्लांटी में आएंगे तो यहाँ टिश्यू भी फॉर्म होगा, ऑर्गन भी बनेगा, लेकिन एनिमेलिया में थोड़ा और है कि ऑर्गन सिस्टम भी बनता है। तो ये सारी चीज़ें पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, तो इसे आप ज़रूर याद रखें। तो मोनेरा में एक जनरल आइडिया मैंने आपको दिया यहाँ कि क्या कैसा इनमें प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ देखेंगे तो सेल वॉल की अगर हम एक बार देख लें तो सेल वॉल मोस्टली जो ऑटोट्रॉप्स होंगे उनमें ही प्रेजेंट है। तो देखिए प्लांटी है और ऑटोट्रॉप्स है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है और वो किससे बनी है, सेलुलोज की। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं फंजाई एक ऐसा ग्रुप है जो ऑटोट्रॉफ नहीं है लेकिन इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, बट वो सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज की बनी नहीं होती है, बल्कि किसकी बनी होती है, वो बनी होती है काइटिन की बनी होती है। ये बहुत ही खास बात है फंजाई के लिए। इसी तरीके से प्रोटिस्टा में मे बी सेल वॉल प्रेजेंट, मे बी एब्सेंट, मोनेरेंस में भी मे बी प्रेजेंट, मे बी एब्सेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक का डिस्कशन आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी अगर आप देखें तो यहाँ भी मे बी ऑटोट्रॉफिक, there may be heterotrophs also, protistans में भी सेम केस है, जबकि फंजाई जो हैं एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफ्स हैं और एनिमेलिया किंगडम एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफ है। और बस यहाँ का क्या अलग है कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डेड डिकेइंग फूड इंक्लूडेड है और यहाँ पर डेड डिकेइंग फूड का ये मोस्टली नहीं एब्जॉर्ब करते हैं, और ये क्या करते हैं जो फ्रेश फूड होता है उसे कैप्चर करते हैं या इंजेस्ट करते हैं, फिर डाइजेस्ट करके यूज़ करते हैं एनर्जी फॉर्मेशन के लिए। जबकि प्लांटी में आप देखेंगे कि ये हमेशा ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल प्रोसीड बेसिक्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यही मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो मोनेरेंस इंक्लूड ऑल यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोट्स। आई कैन समराइज, प्रोटिस्टा इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट्स। फंजाई इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर सैप्रोफाइट्स एक्सेप्ट, लेकिन कुछ जब हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे प्रोटिस्टा किंगडम को तो उसमें हम देखेंगे कि उसमें प्रोटिस्टा में 5 ग्रुप्स बनाए गए हैं। तो इसमें से एक स्लाइम मोल्ड्स भी है वाटर, तो जो कुछ मोल्ड्स होते हैं यानी कि एक्चुअली ये हैं फंजाई ही, लेकिन क्योंकि ये यूनिसेलुलर है तो इसलिए इनको एक अलग ग्रुप बनाकर प्रोटिस्टा में रख दिया गया है। वहाँ पर अब हम लोग जब पढ़ेंगे डिटेल में देखेंगे यहाँ। फिर इसी तरीके से किंगडम प्लांटी है जिसमें सारे मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स आते हैं। किंगडम एनिमेलिया में सारे मल्टीसेलुलर होलोजोइक एनिमल्स आते हैं। और ये सारे कैसे होते हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे
हेटरोट्रॉप्स हैं। किंगडम मोनेरा इट इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोट्स, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज एंड साइनोबैक्टीरिया, ये सभी क्या है, मोनेरा किंगडम के एग्जाम्पल हैं। तो जब मोनेरा किंगडम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको मैं वहाँ पर माइकोप्लाज्मा की बात बताऊंगी और उसमें एक्टिनोमाइसीटीज की और सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में उस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। दे आर बेसिकली यूनिसेलुलर बट कैन बी माइसीलियल, कोलोनियल एंड फिलामेंटस। जनरली ये एक ही सेल से बने हुए जीव होते हैं, लेकिन कभी कभी ये कॉलोनी बनाकर रह सकते हैं और इनकी संरचना धागे जैसी हो सकती है। और ये जो धागे जैसी संरचना जब इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेती है, जैसे कि ये धागे की संरचना है और इसने एक नेटवर्क बना लिया, तो इसे ही माइसीलियम बोलने लगते हैं। स्पेशली ये जो स्ट्रक्चर होता है ये हमें फंजाई में देखने को मिलता है, ये माइसीलियल स्ट्रक्चर इसे कहते हैं। लेकिन कुछ मोनेरन्स भी इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट करते हैं, स्पेशली जो एक्टिनोमाइसीटीज ग्रुप है इसमें इनको देखने को मिलता है। तो आपको जो याद रखना है कि ये यूनिसेलुलर होते हैं और समटाइम्स मे बी माइसीलियल, कोलोनियल एंड फिलामेंटस। ओके स्टूडेंट्स, सेल्स इनकी जो है बहुत छोटे साइज़ की होती है। मोनेरन में 0.2 से 10 माइक्रोमीटर तक की विद पेप्टिडोग्लाइकेन इनकी सेल वॉल में, अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो मोनेरा की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम। वन एनवलप ऑर्गेनाइजेशन है इनका, यानी एक ही एनवलप होता है, सेल वॉल ही प्रेजेंट होती है। ये सिंगल सर्कुलर और इनका जो डीएनए होता है सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है और ये न्यूक्लियोइड बनाता है। डीएनए जो है यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर न्यूक्लियोइड बनाते हैं ये। यहाँ पर जो एक्चुअली डीएनए इनका जो है सिंगल सर्कुलर है, ये क्वाइल्ड यहाँ नहीं रहना चाहिए, सिंगल सर्कुलर डीएनए रहता है इनका। और जो डीएनए है ये सेल के अंदर, जैसे कि ये डीएनए है तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर, ऐसा नहीं है कि ये सेल है तो इसके अंदर पूरा क्रोमोसोम यहाँ से वहाँ तक बिखरा रहेगा, नहीं, ये कंडीशन नहीं होती है। बल्कि कैसी कंडीशन हो, ऐसी है कि ये डीएनए है, भले इसके चारों ओर एक डेफिनेट बाउंड्री नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरी साइटोप्लाज्म में बिखरा रहेगा। और जो एक ये रीज़न आपको दिखाई दे रहा है जिसके चारों ओर एक डेफिनेट बाउंड्री नहीं है, लेकिन जिसमें कि कंडेंस्ड रहता है क्रोमैटिन मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, इसी को क्या कहते हैं, इसे ही बोलते हैं न्यूक्लियोइड, जो कि मोनेरा का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। विदाउट एसोसिएशन विद हिस्टोन्स, और साथ ही साथ ये जो डीएनए होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल मोनेरा में बनाता है, यानी क्रोमोसोम मोनेरा का जो बनाता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होती है। और आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो जिन भी ऑर्गेनिजम्स में प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है उनके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। राइबोसोम्स हमेशा कैसा होता है, 70S टाइप का होता है। थाइलेकोइड्स प्रेजेंट होते हैं अगर फोटो ऑटोट्रॉप्स है कोई तो। जनरली जो हेटरोट्रॉप्स होंगे उनमें थाइलेकोइड की ज़रूरत नहीं होती है और मोस्टली इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे कि सेल का बेसिक स्ट्रक्चर आप जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये सारे जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मोनेरन्स में नहीं पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता है इनमें, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और अगर प्रेजेंट है तो सिंगल स्ट्रैंडेड फ्लैजिला होता है। आपने देखा है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कि ये बैक्टीरिया होता है और इसमें फ्लैजिला आपको बैक्टीरिया में भी दिखाई देते हैं। न्यूट्रिशन इसमें ये बहुत तरीके से मोनेरन्स न्यूट्रिशन कर सकते हैं, सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, कीमोटोट्रॉप्स हो सकते हैं, फोटोऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं। मोनेरा के डिटेल लेक्चर में ये मैं आपको डिस्कस करूँगी। इनका हैबिटेट जो होता है बहुत ही स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहते हैं, यानी कि जहाँ बहुत साल्टी एरिया है या सल्फर स्प्रिंग्स हैं, हॉट स्प्रिंग्स है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है या स्नो प्रेजेंट है, बहुत कम टेम्परेचर है, यहाँ पेट्रोलियम प्रेजेंट है, ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में भी मोनेरन्स सर्वाइव करते हैं। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली रेगुलर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होता है और अब्सेंट रहता है। सम मोनेरन्स हैव द एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कुछ मोनेरन्स हैं जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया जिन्हें कहते हैं, दिस
जिसका कि एग्जाम्पल है नॉस्टॉक एनाबीना। ये क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं और ये नाइट्रोजन फिक्स करके क्या करते हैं, पौधों की मदद करते हैं और इससे पौधों को ज़मीन में नाइट्रोजन फिक्स होकर सॉइल में मिलती है और ऐसी सॉइल में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनका प्रोडक्शन अच्छा होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल प्रोसीड। यू कैन सी हियर सम स्लाइड्स ऑफ सम मोनेरंस। ये नॉस्टॉक है, यही आपको दिखाया गया था। ये जो इसका ये पॉइंट है, ये स्ट्रक्चर है, यही इसकी नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सिंग स्ट्रक्चर है वो है। एक्चुअली ये ऐसा है कि आपको पता है कि मोनेरा में एक ही सेल होती है, तो जैसे कि बैक्टीरिया में आप देख पा रहे हो कि एक ही सेल है, एक सेल ही पूरा जीव है, लेकिन कुछ क्या होते हैं वो फिलामेंट बनाते हैं या कॉलोनी बनाते हैं। जैसे कि आप यहाँ नॉस्टॉक एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसको देख रहे हो तो ये फिलामेंट बना रहा है एक लंबा सा। यहाँ तो नहीं कहोगे ना कि एक ही सेल है ये, ठीक, तो ये फिलामेंट से स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसी सेल होती हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल प्रोसीड ऑन सेकेंड किंगडम, दैट इज प्रोटिस्टा। द किंगडम contains unicellular and colonial eukaryotes like flagellates, diatoms, dinoflagellates, lime molds, water molds, sarcodines, ciliates and sporozoans। ठीक है, तो स्पेशली प्रोटिस्टा में उन्हें ही रखा गया जो कि जब अरस्तु ने डिवाइड किया था तो जिन सबको उन्होंने एनिमलिया में रख दिया था कि जिनको वो देखते थे कि वो जंतुओं की तरह भोजन करते थे, जंतु समभोजी थे, यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन जो शो करते थे उन सब को। लेकिन वो मल्टी सेलुलर नहीं थे बल्कि यूनिसेलुलर थे। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, यूकैरियोटिक थे लेकिन यूनिसेलुलर थे, तो इसलिए उन सभी को लाके कहाँ ग्रुप कर दिया, उन्हें रख दिया गया कहाँ, प्रोटिस्टा में। तो इस तरह से ये जो सार्कोडाइन है, सीलिएट्स हैं, स्पोरोजोअन्स है, तो ये स्पेशली हमारा प्रोटोजोआ जो किंगडम है, पूरा प्रोटोजोआ किंगडम के मेंबर्स हैं, ये उनका क्लास है ये, इसे भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो यानी कि जो प्रोटोजोआ है वो प्रोटिस्टा किंगडम में ही आता है। इसके अलावा डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स ये आते हैं, ये सब हम लोग जब प्रोटिस्टा को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिस्कस करूँगी मैं आपके साथ। न्यूट्रिशनली दे कैन बी फोटोसिंथेटिक और होलोजोइक, यानी कि ये पौधों की तरह भी कोई प्रोटिस्टा होंगे, जैसे कि आप जानते हो यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है जबकि वो प्रोटोजोआ है, तो फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं ये, और ये ऑटोट्रॉफिक, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, या जंतुओं की तरह भोजन करने वाले, फूड को कैप्चर करके डाइजेस्ट करके एनर्जी ऑब्टेन करने वाले हो सकते हैं। इनमें जो सेल वॉल है वो फोटोसिंथेटिक फॉर्म्स में, यानी कि जो फोटो ऑटोट्रॉफ से केवल उन मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बाकी में एब्सेंट होती है। और इनके कुछ मेंबर्स जो हैं वो मिक्सोट्रॉफिक हैं। मिक्सोट्रॉफिक का मतलब है कि जब वो लाइट में रख देंगे उन्हें तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, और डार्क में रख देंगे तो वो जंतुओं की तरह फूड कैप्चर करेंगे। एग्जाम्पल है यूग्लिना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए सो ड्यू टू दिस रीज़न यूग्लिना इज नोन एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। आपने ये बहुत बार सुना होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल शो यू सम स्लाइड्स ऑफ प्रोटिस्टन्स। दीज आर द डायनोफ्लैजिलेट्स। एक्चुअली ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और लेकिन यहाँ पर आपको मैंने थोड़ा सा इनलार्ज व्यू इनका दिखाया है। इरेगुलर शेप्स हैं, इनके बारे में डिटेल में हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा जब पढ़ेंगे सेकेंड लेक्चर में तो वहाँ डिस्कशन करेंगे। बट सेल ऑर्गेनाइजेशंस इनमें जो होता है, इनमें 2 एनवलप टाइप होता है। जैसे कि आपका सोप बॉक्स होता है, सोप बॉक्स को आप इमेजिन करेंगे तो वैसा ही 2 एनवलप टाइप का इनका, सोप बॉक्स टाइप का इनका सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें और इनमें डिस्टिंक्ट क्लियर न्यूक्लियस, ये थोड़ा सा देखिएगा यहाँ यू है, तो न्यूक्लियस जो है वो क्लियर न्यूक्लियस जैसा एक वेल बाउंड्री बनाया हुआ न्यूक्लियर एनवलप होगा, न्यूक्लियोलस होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा वो, और उसमें हिस्टोन भी प्रेजेंट होगा डीएनए के साथ, तो वैसा वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है प्रोटिस्टा के मेंबर्स में। इनका राइबोसोम जो है वो 80S टाइप का होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, और अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो डबल स्ट्रैंडेड है, जैसा कि मोनेरा में आपने देखा था कि अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता था। रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल भी हो सकता है और असेक्सुअल भी हो सकता है, बट यहाँ पर एम्ब्रियो स्टेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, देन फंजाई,
दिस इज किंगडम ऑफ अक्लोरोफाइलस, यानी कि इनमें कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता, और क्योंकि इनकी सेल में कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता है इसीलिए स्पेशली इसके सारे जो मेंबर्स हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, डेड डिकेइंग मटेरियल को एब्जॉर्ब करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, और इनको ये कभी भी अपनी सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। दे आर स्पोर प्रोड्यूसिंग मल्टीन्यूक्लिएट मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है जो मोस्टली एब्जॉर्प्टिव टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं। यानी कि जैसे कि आपने ब्रेड देखी होगी या कोई भी आपका फूड आइटम है काफ़ी दिन रखा रह गया, ये ब्रेड होगी, तो आप देखते होगे कि ब्रेड पे ऐसे काले काले से फंगस लग जाते हैं। तो एक्चुअली ये ब्रेड मोल्ड जो होता है, म्यूकर, एक फंजाई होता है जो कि एब्जॉर्ब करता है ब्रेड से अपना फूड। ठीक है, तो ये क्योंकि ये एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बिलोंग करते हैं और सड़े गले पदार्थों से भोजन लेते हैं, तो सड़े गले से लेने की वजह से दे डिपेंड ऑन डेड डिकेइंग मटेरियल फॉर फूड, दैट इज सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक का मतलब ही यही होता है, और एब्जॉर्प्टिव का मतलब है कि ये भोजन को पकड़ते नहीं है, फूड को पकड़ते नहीं है, कैप्चर नहीं करते हैं, बल्कि एब्जॉर्ब करते हैं। इनकी जो माइसीलियम वगैरह जब हम डिस्कस करेंगे फंजाई को डिटेल में, वहाँ मैं आपको बताऊँगी। ये एक इसमें कंट्रडिक्शन है कि यीस्ट, जैसे आपने देखा सारी यूनिसेलुलर्स को कहाँ रख दिया था, यूनिसेलुलर यूकैरियोट को प्रोटिस्टा में, लेकिन ईस्ट एक फंजाई है जो यूनिसेलुलर है, लेकिन वो सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के साथ रखा गया है फंजाई में। सम फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन, कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो एल्गी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके लाइकेन का फॉर्मेशन करते हैं, और कुछ क्या होते हैं, हायर प्लांट्स जो होते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स के साथ एसोसिएशन करके माइकोराइजा बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं आपको फंजाई पढ़ाऊंगी तो वहाँ पर मैं और बताऊंगी माइकोराइजा और लाइकेन के बारे में। इनकी बॉडी जो होती है माइसीलियम बनाती है, नंबर ऑफ हाइफी या फिलामेंट्स से बनी हुई होती है। बताया मैंने आपको कि ऐसे फिलामेंट्स धागे जैसी बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, और ये धागे जैसी संरचनाएं इस तरीके से नेटवर्क बनाती हैं, और एक धागा, इसमें से कोई एक धागा ले लिया, एक धागा, तो इसको फिलामेंट या हाइफी कहते हैं, और इससे ये जो पूरा नेटवर्क बन गया इसे माइसीलियम कहते हैं, और ये बेसिक स्ट्रक्चर है फंजाई का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एस्परजिलस और पेंसिलियम है, तो पेंसिलियम के बारे में आप जानते हैं कि पेंसिलियम जो है ये इसी से फर्स्ट एंटीबायोटिक जो पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक्सट्रैक्ट की थी, पेंसिलियम फंजाई से एक्सट्रैक्ट की थी। पेंसिलियम नोटेटम, पेंसिलियम क्राइसोजेनम, दो होते हैं। इसके अलावा एस्परजिलस है, एस्परजिलोसिस लंग्स का इन्फेक्शन कर देता है, एस्परजिलोसिस है ये एक डिजीज़, ह्यूमन डिजीज़ है, एस्परजिलोसिस लंग्स में इन्फेक्शन करता है। और पेंसिलिन से क्या होता है, इससे पेंसिलिन एंटीबायोटिक पेंसिलियम फंजाई से ऑब्टेन की जाती है। टिश्यू सिस्टम नहीं होता है, आपको बताया था मैंने फंजाई में टिश्यू सिस्टम एब्सेंट है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा लेकिन स्मॉल होगा, इंट्रासेलुलर स्पिंडल्स बन सकते हैं इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये बहुत खास बात है कि ये सारे हेट्रोट्रॉप्स हैं लेकिन सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होती है, जो कि किसकी बनी होती है, एक्सक्लूसिवली ये इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। सेल ऑर्गेनाइजेशन इज डबल एनवलप टाइप, फूड रिजर्व इज ग्लाइकोजन। मोस्टली ये जो अपना फूड रिजर्व करते हैं फंजाई वो किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। रिप्रोडक्शन इनमें असेक्सुअल सेक्सुअल सभी हो सकते हैं, बट इनका जो सेक्स ऑर्गन होता है वो रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन शो करता है। रेट्रोग्रेसिव मतलब आगे जाकर पीछे आ जाना, जैसे अभी आप देख रहे हैं कोरोना पीरियड है, 2020 तक हम लोग बिल्कुल आगे आ रहे थे, डेवलपमेंट एडवांसमेंट। अभी क्या हो रहा है कि हम फिर से पीछे जाने लगेंगे, बहुत सारा जो वे ऑफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है वो चेंज होगा। तो बहुत सारे जो बेसिक फाउंडेशन बहुत पहले यूज़ किए जाते थे घरों में, जैसे जिसे आप कह सकते हैं टचेबिलिटी टाइप का, तो वही आज हम उसे फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक तरीके का क्या हुआ, रेट्रोग्रेसिव हमने फॉलो कर लिया पाथ। तो उसी तरीके से जो फंजाई होते हैं इनमें जो इनके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत डेवलप टाइप के नहीं होते हैं, तो इसीलिए कह रहा है कि रेट्रोग्रेसिव सेक्स ऑर्गन्स अंडरगो रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। एम्ब्रियो स्टेज इसमें एब्सेंट होती है, और किंगडम में सारे फंजाई को रखा गया है, केवल स्लाइम मोल्ड्स
रखे नहीं गए इसमें, वो प्रोटिस्टा में रखे गए क्योंकि वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, मशरूम, रस्ट, ये सभी जो आपने नाम सुने होंगे ये सभी क्या है, फंजाई हैं और इनमें से बहुत सारे पैरासिटिक होते हैं और डिजीज़ कॉजिंग होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं यानी कि। तो नेक्स्ट है हमारा प्लांटी किंगडम। प्लांटी किंगडम में आप जानते हैं सारे पौधों को रखा गया है। मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं, दे आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। और जो फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है और फोटोसिंथेसिस कर रहा है और ग्रीन है, तो वही केवल फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, कुछ और पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं और उनकी वजह से भी कुछ ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है, अपना फूड खुद बना सकता है। तो उनके यानी कि जो प्लांट के क्लोज रिलेटिव्स हैं वो भी प्लांटी किंगडम में रखे गए हैं। कुछ यूनिसेलर एल्गी जैसे कि ब्राउन एल्गी है जिनको फियोफाइसी में रखा गया है, या रेड एल्गी है, तो वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं लेकिन वो उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं पाया जाता है, वो भी प्लांटी में रखे गए हैं। तो इसके साथ साथ और जो मेन आप जानते हैं प्लांटी किंगडम के नाम से, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटो मतलब जिसमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, यानी जाइगोट के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो स्टेज आती है, उसे स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं, जिनमें कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स आते हैं, या आप कह सकते हैं जिनमें सीड फॉर्मेशन होता है। तो ये सभी प्लांटी के आगे, यानी कि प्लांटी में मेनली कौन कौन आए, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और एल्गी भी आते हैं। प्लांट्स आर मोस्टली फिक्स्ड, यानी इनमें मूवमेंट नहीं होता है। मोटिलिटी अकर्स इन सम एल्गी, कुछ एल्गी चल सकते हैं और इनकी रिप्रोडक्टिव सेल्स, कुछ लोअर प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव सेल्स में मूवमेंट होता है, यानी कि जो उनका मेल गैमिट होता है वो मोटाइल होता है और मूव करके फीमेल गैमिट तक पहुंचता है, तो इस लेवल तक की मोटेलिटी होती है इनमें। और सिस्टम जो होता है वो इन हायर फॉर्म्स में जो है वो केवल दिखाई देता है प्लांटी में, लेकिन प्लांटी के जो हायर ग्रुप हैं जैसे कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो इनमें बहुत अच्छा टिश्यू सिस्टम का डेवलपमेंट जो है हमें देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट, और इनका जो सेल रिजर्व है, फूड रिजर्व है, वो स्टार्च के रूप में बनाते हैं। आप जानते ही हैं कि पौधे जो अपना फूड बनाते हैं वो स्टार्च के रूप में रखते हैं। इसमें वैक्यूल्स पाई जाती हैं, प्लास्टिड्स पाए जाते हैं और इनमें हमेशा जो प्लांट्स होते हैं इनकी सबसे खास बात सेल वॉल हमेशा प्रेजेंट होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों तरीके का हो सकता है, ठीक है। सभी में इनमें एम्ब्रियो बनता है लेकिन एल्गी में नहीं बनता। देखिए जो मेन आपको प्लांटी में मैंने बताया, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी में एम्ब्रियो बनता है, लेकिन जो एल्गी है इनमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। और कुछ और भी बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, वो मैं आपको जब प्लांटी किंगडम डिटेल में पढ़ाऊंगी तो मैं वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगी। फिर ये देखिए कुछ मेंबर्स हैं जैसे बाल्सम है, कैनेडा बाल्सेमिया, कैलेंडुला फ्लावर है या मैरीगोल्ड है। आप अपने आसपास हम लोग जो यूज़ करते हैं डेली रूटीन में कुछ प्लांट्स जिनके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यूज़ किए जाते हैं, तो जैसे कि कैरेट है, पोटैटो है और टोमेटो है, लेडी फिंगर है। तो अलग अलग फैमिलीज़ हैं जिसमें कि रेननकुलेसी हुआ, मालवेसी हुआ, ब्रेसिकेसी हुआ या कंपोजिटी हुआ, तो ये सब किस में आते हैं, ये सब प्लांटी के मेंबर हैं, यानी सारे पौधे जैसे दिखते हैं जो पौधे ही होते हैं जो वो सभी किंगडम प्लांटी में रखे गए हैं। नेक्स्ट इज एनिमलिया किंगडम। द किंगडम कंटेन्स मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैविंग इंजेस्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ये फूड को कैप्चर करते हैं और इनगल्फ करते हैं, खाते हैं, मुंह में लेते हैं, उनके पास एक माउथ होता है। रेगुलर बॉडी फॉर्म जो इनमें होती है वो एक पाई जाती है। इनका जो बॉडी होता है हेड, ट्रंक और लिम्स में डिवाइडेड रहता है। इंटरनल ऑर्गन्स इनमें वेल डेवलप्ड हो जाते हैं और ग्रोथ प्रेजेंट होती है, बट डिफ्यूज्ड ग्रोथ होती है। डिफ्यूज्ड ग्रोथ का मतलब हुआ कि एक निश्चित टाइम तक ही, एज डिफिनिट एज तक ही ये ग्रो करते हैं। ऑकरेंस ऑफ टिश्यू उनमें होती है, ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। नर्वस सिस्टम, सेंसरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। एनिमल्स आर जनरली मोबाइल होते हैं, ये मूवमेंट कर सकते हैं। सेल्स इनकी जो होती हैं स्पेशली
एनिमल सेल्स में कि ये जो सेल्स होती हैं इनमें वॉल नहीं होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, इनमें जो सेंट्रल वैक्यूल है वो नहीं होती है, छोटी छोटी बहुत सारी वैक्यूल्स होती हैं और प्लास्टिड्स भी इनमें नहीं पाए जाते हैं। लेकिन इनके जो सेंट्रियोल हैं वो पाए जाते हैं एनिमल्स में, और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कॉमन मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है और एम्ब्रियो स्टेज जो है वो प्रेजेंट होती है एनिमलिया किंगडम में। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, स्नेक्स हैं, टर्टल्स हैं, तो टॉयज हैं, बर्ड्स हैं लाइक पिकॉक, पैरट, पीहन एंड हेयर ये खरहा आप देख रहे हैं यहाँ पे, या रैबिट है, और जो पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रस मीन्स कंगारू, शेर, चीता, भालू, ये सभी किंगडम एनिमलिया के मेंबर हैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं इस ग्रुप के मेंबर्स के बारे में। जब किंगडम एनिमलिया मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ डिटेल में, तो वहाँ पर मैं आपसे ज़रूर इसके बारे में बात करूंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स। किंगडम एनिमलिया इंक्लूड्स ऑल एनिमल्स ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट प्रोटोजोआ, यानी कि इस तरीके से जितने भी एनिमल्स थे उन सबको तो एनिमलिया किंगडम में रख दिया गया था, लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया कि प्रोटोजोआ किंगडम जो था, क्योंकि इसके सारे मेंबर्स यूनिसेलुलर थे, तो उसे कहाँ रख दिया गया है, प्रोटिस्टा में। तो वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, कुछ साइंटिस्ट उसे किंगडम एनिमलिया में रखते हैं और कुछ साइंटिस्ट उसे किंगडम प्रोटिस्टा में रखते हैं, बट एक्चुअली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोटोजोआ के मेंबर्स को कहाँ रखा गया है, प्रोटिस्टा किंगडम में ही रखा गया है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर इज बेटर देन द प्रीवियस क्लासिफिकेशन, जैसा कि बाकी लोगों ने किए थे, फाइलोजेनी और बाकी सिस्टम्स बेस थे, उसे अच्छा क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये। किंगडम मोनेरा, फंजाई, एनिमेलिया जो है वो तो होमोजीनस है, मोस्टली इनमें एक जैसे ही जो मेंबर्स रखे गए हैं उनके सबके फीचर्स जो हैं वो एक जैसे, जैसे जो मोनेरा हैं वो सबके सब क्या है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक है। फंजाई है तो वो सारे मल्टी सेलुलर हैं और सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं, और हेट्रोट्रॉफिक में सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। लेकिन कुछ जैसे प्रोटिस्टा किंगडम है तो वो थोड़ा हेट्रोजिनस टाइप का है, ये मैंने शुरू की स्लाइड में आपको बताया। स्लाइम मोल्ड्स डू नॉट फिट इनटू इट, ट्रीटमेंट ऑफ एल्गी इन किंगडम प्लांटी एज वेल एज प्रोटिस्टा सीम्स टू बी डिफेक्टिव, यानी कि एल्गी में आप देख रहे हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी को जो है वो मोनेरा में रखा गया बैक्टीरिया के साथ, ब्लू ग्रीन एल्गी को, नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलोटोरिया जिसके मेंबर थे। इसी तरीके से एल्गी में कुछ यूनिसेलुलर एल्गी को अलग से प्रोटिस्टा में भी रखा गया है, और प्लांटी किंगडम में बाकी सारे जो ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी होते हैं उनको प्लांटी किंगडम में रखा गया है। तो ये इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के आप कह सकते हैं कि ओवरऑल कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो कि अंडरस्टैंडिंग के साथ यूज़ किए जाएँ अगर हम सिस्टम को, क्लासिफिकेशन सिस्टम को, तो फ्रूटफुल क्लासिफिकेशन सिस्टम है। इसीलिए सो इट इज़ ऑल्सो अ पॉपुलर टाइप ऑफ यूज़र फ्रेंडली टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये। तो कि स्टूडेंट्स ये जो मोस्ट ऑफ द स्लाइड्स थी, बहुत सारे नेट सर्चिंग के साथ मैंने ये स्लाइड्स बनाई हैं। मे बी इनमें कुछ, क्योंकि मैटर और ये जो टॉपिक है कुछ ऐसा है, नेचर है टॉपिक का, तो मे बी इसमें कुछ फॉल्ट्स हो सकती हैं। अगर होती हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा और आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल conclude this topic, so keep watching all my videos, like, share and subscribe. Thank you.